तो हमारी कॉफ़ी बन गई है। फिलहाल मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ सैटरडे को रात के 7 बजे एंड उसको 2 घंटे और लगेंगे। तो हमारी कॉफ़ी चाय पानी स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका सलोनी मिंदा की कहानियों में। एंड बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने लैब क्यों चेंज किया, तुम्हारे साथ प्रोफेसर के साथ क्या हुआ एंड क्या नहीं हुआ। तो आज मैं बताऊंगी। टुडे आई विल let you know everything what happened with that professor and why did I leave that lab, and then I changed my whole major and then I graduated with that major. Actually I came to Korea to study immunology and I was there in that lab I think for 10 months, and the masters is for 2 years. Okay, so I came through GKS Korea Global Korea Scholarship. जिसको नहीं पता है, मैं Global Korea Scholarship से आई थी 2021 में। मैंने अपना लैंग्वेज किया फ्रॉम देगू किमयंग यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद फिर मैं चुंगनाम नेशनल यूनिवर्सिटी चली गई टू डू माई मास्टर्स. So when I was in that lab, I used to work from 7 a.m. to I think 1 a.m., sometimes 2 a.m., sometimes 3 a.m. and then go back again 7 a.m. तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था एंड मेरे को नहीं लगता कि ऐसा इंसान को काम करना चाहिए ऐसे. एंड इवन सैटरडे संडे तो मैं रोज़ बहुत रोती थी कि ये मैं क्या कर ली. मेरे को लगता था कि मैं गलत जगह आ गई पढ़ने के लिए. एंड मुझे, क्योंकि मैं पहली बार कोरिया आई थी तो मुझे लगा कि कोरिया में ऐसे ही काम होता है एंड यही रियलिटी है. तो आई थॉट कि चलो आई नीड टू एक्सेप्ट इट एंड देन आई नीड टू ग्रेजुएट एंड आई विल गो बैक टू इंडिया. बट रोज़ रोज़ ऐसे करने के वजह से आई गॉट सम हेल्थ प्रॉब्लम्स because every Monday I used to have an individual meeting with professor about whatever project I am doing and what are the results and those all things. So every Monday, every Sunday मेरे को ना anxiety होती थी कि how will I tell this professor, I'm still learning, I still don't know anything. And then every Monday he used to get irritated and annoyed because I don't have the results, I don't have the data. I was still learning, I was new in that lab, and the most important thing and the hardest thing was they speak in Korean. Everything was in Korean. Even the protein, the name of the protein, they don't say protein, they say dhambekjir. They don't say bacterial broth or bacterial culture, they say gyunju. These all terms were in Korean and I was really having a hard time to understand everything and get. So to get along with lab mates, I tried to speak in Korean rather than them trying to speak in English. And ये reality हर जगह की है कि professors जो है वो इंग्लिश में मे बी तुमसे बात कर ले, बट द लैब मेट्स एंड एवरीवन दे यूजुअली टॉक इन कोरियन. There are very few in universities, like big universities like Seoul National University, and say they try to speak in English. But my professor was like, no one will speak in English. Saloni needs to improve her Korean, so everyone will talk to her in Korean. And मेरे को बहुत लोनली, बहुत ही डिप्रेशन हो रहा था इस चीज़ से कि मेरे को एक तो समझ में नहीं आ रहा है, एक तो हर मंडे में डांट खा रही हूँ, हर चीज़ खराबी हो रहा है, ना ही मैं सो पा रही हूँ और फिर मुझे नींद आना बंद हो गई. मुझे सपने में भी प्रोफेसर ही आता था कि प्रोफेसर बोल रहा है ये करो वो करो. तो आई वॉज लाइक रियली इन बैड सिचुएशन दैट टाइम. After working like this for 3-4 months, I started to have major health problems. I joined in September and then in January
I did in December I didn't get my first period, in January I didn't get my second period, and then in March I didn't get my third period. So I was like something is wrong with my body, and then I went to doctor to get a checkup that why is this happening, like it's not normal for any girl. So they did my all the checkups like ovary count and blood checkup and CT scans and ultrasound and everything was okay except one. And she said my hormonal balance was like nowhere near to normal. It was a huge imbalance. And I asked her like why is that. So for 1 year in Daegu during my language school I had no problem, I was really happy. And then suddenly after joining this lab everything was like not going well. So she said that the major problem what I can see is because due to stress, your your hormonal imbalance is due to stress, and you need to take less stress to maintain your body, like make your body healthy. Because even if you start eating medicine, the till the time to medicine खा रही हो तब तक you will get your period and get everything normal, but as soon as you leave your medicine तुम्हारा फिर से वही start हो जाएगा. And she was right. तो I thought like okay she is right, I need to work on this. तो मैंने 1 महीना और ट्राई किया टिल अप्रैल. बट एक दिन ऐसा आया कि वही मंडे को इंडिविजुअल मीटिंग हो रही थी मेरी उस प्रोफेसर से. और वो ऐसे ऐसे मतलब वो मेरे सामने बैठा था मीटिंग में, उसको बोल रही थी कि ये रिजल्ट नहीं आया ऐसे. एंड उसने ऐसे हाथ पटका, ऐसे ऐसे हाथ पटका, ऐसे हाथ पटक के शिवाल बोला. मतलब ऐसे मैं एग्जैक्टली बताती हूँ, ऐसे शिवाल ऐसे बोला उसने. एंड इसका मतलब होता है फक. तो एंड फिर वो एकदम ऐसे ऐसे कर रहा है एंड मुझे बहुत गंदा लग रहा था कि मैं कहाँ काम कर रही हूँ कि यहाँ ये इतना ये गाली कहाँ से आ रही है. एंड उसे लगता था कि मुझे इतनी कोरियन समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसको पता था कि मैं कोरियन में बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ लोगों को समझने में एंड ऑल. तो उसको लगा कि मुझे नहीं समझ में आएगा. तो मैंने बोला उसको नेक्स्ट डे जाके कि देखो प्रोफेसर, आई थिंक तुम मेरे काम से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आई वॉन्ट टू चेंज माई लैब. तो उसने मेरे को बोला कि तुम यहाँ नहीं काम कर सकती तो तुम वापस अपने कंट्री जाओ. लिटरली ही सेड दिस इन इंग्लिश, आई विल टेल यू इन इंग्लिश व्हाट ही सेड टू मी. इफ यू कैन नॉट वर्क हियर इन दिस लैब, you go back to your country. You cannot work anywhere in Korea. He said to me this statement. And then I was like shocked, like what kind of person is he? And uske baad I complained to the government, like because I was a government scholar. So I complained to government, and then they called my international office in Chungnam. एंड उसके बाद और भी बवाल हुआ. उसके बाद उसने क्या बोला कि बिकॉज उसको पता था कि मैं बहुत बार हॉस्पिटल गई हूँ चेकअप्स के लिए इसके लिए, एंड उसको लगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ. तो उसने ये एज अ कार्ड यूज़ किया. उसने बोला कि शी इज़ डिप्रेस्ड, she is taking anti-depression and anti-anxiety pills, and I think she is mentally sick, so she should be sent back to India in a hospital to get a mental treatment. She is not fit for studying. एंड इससे भी बड़ा बात ये हुआ जब उसने ये स्टेटमेंट दे दिया यूनिवर्सिटी में, तो ये हुआ कि इंटरनेशनल ऑफिस मुझे फ़ोन करके बोल रही है कि तुम्हारे प्रोफेसर ने ऐसा बोला है एंड ही थिंक्स यू आर नॉट मेंटली फिट. तुम मतलब उसने मुझे पागल घोषित कर दिया. एंड ये सब चीज़ें मुझे और स्ट्रेस दे रही थी. ये सब चीज़ों से मुझे और लग रहा था कि मेरा अब जीना मुश्किल हो गया. तो और मैंने घर पे भी नहीं बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है. तो फिर मैं साइकेट्रिस्ट के पास गई. मैंने सेशन लिया एंड फिर उसके बाद उस साइकेट्रिस्ट ने रिपोर्ट दिया. उसने ये कंफर्म किया कि मैं मेंटली सिक नहीं हूँ एंड मैं बहुत सही हूँ पढ़ने के लिए. मतलब एक टाइम पे मुझे भी विश्वास होने लगा कि मैं पागल हूँ. मतलब उसने ऐसा सिचुएशन कर दिया था मेरे लिए. एंड इसके बाद मैंने अपना सामान बांधना स्टार्ट किया कि मैं जा रही वापस, अब मेरे से नहीं होगा. बट फिर
मुझे ये भी याद आया कि मेरे पापा ने बोला था कि ये स्कैम है, ये स्कॉलरशिप स्कैम है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे ही जा रही है, देखना 1 महीने बाद वापस आएगी। ये मुझे स्ट्राइक कर गई। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं वापस चली गई तो मैं उनको सही प्रूव कर दूंगी, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग, मैंने जब उसने मुझे दोबारा बुलाया एक बार बात करने के लिए, दोबारा पागल घोषित करने के लिए पूरे डिपार्टमेंट में, तो मैंने सब चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। एंड फिर मैंने बोला कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है एंड मैं ये सबमिट कर दूंगी मीडिया को, एंड ये सब कुछ कर दूंगी मैं। तो मैंने पूरा जंग ही छेड़ दिया। एंड उसके बाद इन्होंने मेरे लिए एक्सेप्शन बनाया कि ओके, ये इसका लैब नहीं चेंज करके इसका पूरा मेजर चेंज कर दो इफ़ ये चाहती है तो, एंड अगर ये प्रोफेसर ढूंढ लेती है तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक्सेप्ट किया कि ओके, आई एम रेडी, मेरा स्कॉलरशिप कैंसिल नहीं होगा, मैं अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लूँगी। बट प्रॉब्लम ये था कि कोई प्रोफेसर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लगेगा कि उस प्रोफेसर से उसका रिलेशन ख़राब हो जाएगा। तो मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था लैब में, एंड जब तक मैं लैब में एक्सेप्ट नहीं होंगी मैं थीसिस नहीं लिख पाऊंगी एंड मैं ग्रेजुएट नहीं कर सकती। तो बहुत सारे प्रोफेसर ढूंढने के बाद एक ही प्रोफेसर ऐसी थी जिसने मुझे लिया, एंड उसका लेने का रीज़न भी यही था कि जब वो पीएचडी करी थी इन अमेरिका तो उसका प्रोफेसर इंडियन था, इसीलिए उसने, क्योंकि मैं इंडियन हूँ इसीलिए उसने मुझे अपने लैब में लिया। ठीक है, मैं तब वो लैब में गई, इसके बाद भी ख़त्म नहीं, इसके बाद भी वो फ़ोन करके बोल रहा है कि मैं सही स्टूडेंट नहीं हूँ। बट वो प्रोफेसर इतनी अच्छी थी कि वो शी बिली she believed myself, and she believed myself, no, she believed me, and she took me in her lab, and I'm really thankful for her. but ये भी एज अ चैलेंज था, क्योंकि उसने मुझे लेटे टाइम भी यही बोला, उसने मुझे मतलब 100% कोई भी किसी पे बिलीव नहीं कर सकता, तो उसने मुझे ये बोला कि अगर तुम यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगी, क्योंकि आई डोंट नो कि उस लैब में क्या हुआ था, मैं किसी का बिलीव नहीं करी, बट अगर तुम यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करोगी तो यहाँ से भी तुमको जाना पड़ेगा। उसने सिर्फ ये लाइन बोल के मेरे को लैब में लिया था। मैंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, बट मेरे लिए एक चैलेंज था कि ऑलरेडी मेरे 11-12 महीने, ऑलमोस्ट 1 ईयर बीत चुका है, मेरे पास बस 1 ईयर है ग्रेजुएट करने के लिए, और मुझे पूरा एक नया प्रोजेक्ट करना पड़ेगा मास्टर्स का थीसिस लिखने के लिए एंड ग्रेजुएट करने के लिए। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने ये सब किया एंड फिर मैं ग्रेजुएट की। बट इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग कोरिया पढ़ने आना चाहते हैं, एंड कोरिया अच्छा भी है, मतलब फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग इट्स गुड, बट यहाँ का वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट है इंडिया से। एंड मेरा लक खराब, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे प्रोफेसर्स खराब होते हैं, क्योंकि जो जिस प्रोफेसर ने मुझे लिया था वो बहुत अच्छी थी, एंड अभी भी मैं जिस लैब में हूँ वो प्रोफेसर भी फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो बाद में क्या हो, बट हाँ अभी तो बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोरिया में प्रोफेसर अगर चूज़ करते हो तो बहुत सोच समझ के, या फिर किसी से पूछ के, या किसी के जान पहचान में हो तो ही चूज़ करो। बिकॉज अगर मेरे तरह टर्न आउट कर गया सिचुएशन तो आई डोंट थिंक कि सब कोई मेरे तरह वो वैसे रो के डिप्रेशन में दवाई खा के हॉस्पिटल जाके ऐसे रह पाएंगे। एंड ये बहुत टाइम का वेस्ट होगा, क्योंकि 1 साल लैंग्वेज ही पढ़ोगे एंड 1 साल बाद अगर सिचुएशन ऐसा टर्न होता है तो तुमने अपने 2 साल बर्बाद कर दिए, उस 2 साल में तुम्हारा मास्टर्स ख़त्म हो चुका होता। तो मेरे लिए ये बहुत टफ सिचुएशन था, बट एट लास्ट मैं ग्रेजुएट कर गई, एंड फिर मैंने पीएचडी के लिए भी अप्लाई किया, एंड मेरी लाइफ अभी ठीक ठाक जा रही है, मतलब भले ही मेरे पास पैसे नहीं है एंड मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि स्टिल मैं स्टूडेंट हूँ एंड एज अ स्टूडेंट रिसर्चर काम कर रही हूँ, तो कुछ खास पैसे नहीं मिलते, बट हाँ रहने लायक काम चला लेती मैं। बट जस्ट बी केयरफुल, I just wanted to tell you all, just be careful while choosing your professors. So आज की कहानी यही तक थी, एंड यही मैं तुम लोग को, आप लोग को, सब लोग को बताना चाहती थी। आई होप यू चूज वाइजली, एंड बस टेक केयर, सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।